irrespective of any kind of audit, is remains always a very important topic, a very important segment in any audit. So either you are doing any stat audit, you are doing internal audits, you are doing concurrent audits, any type of assignments which you are doing, in that assignment the documentation part and working papers plays a very important role. So today we will try to cover each and every aspect of the documentation working paper part, and we'll also include the data management techniques. Look how we have to maintain our documents in our system and in hard files. So so today's session remains very important till last. So please keep your full presence during the session, and any queries, if there will be any, we will cover after the session. So सबसे पहले we need to know why this documentation matters. So first of all it matters because this is a standard compliance pattern है ना. At any point of time in future, at any point of time during a course of audit, the documentation which you maintained, that remains very important for the part of fulfilling the compliances. Like if you have checked something, if you have find something, if you have observed something, so irrespective whether you came with some सबने आई observation. थिंक नाम नहीं लिखा है, प्लीज अपना अपना नाम लिखो जिसने नाम नहीं लिखा है अपना, प्लीज नाम टाइप इन करो सो तुम्हारा अटेंडेंस लग सके ऐसे. Guys, please do that attendance part. Yeah. So that documentation matters. हेलो Yeah. हेलो Yeah. Yes, Rashid, you are audible. Please say. हेलो चेतन सर, हम ऑडिबल? Yeah, you are audible. थैंक यू. You wanna convey something? एक्चुअली नो सर, मुझे आखिरी बार डिटेल दो सो वन सेकंड. ठीक है सर, ऐसे तो बहुत कम लोग आए, आई थिंक कितने टोटल 35 36 36 लोग ही है सर 52 में से, बाकी लोग का नहीं पता. So just check out ना, जिन्होंने जो मिस हैं, and एक बार कनेक्ट कर दीजिए आप, है ना. ओके हम कंटिन्यू रखते हैं because we can't stop because of them, and it's already 25 minutes since your meeting began. Sure, sir. You can please start with your update. Thank you. Yeah, so sorry. So that audit documentation is very important for the compliance part also, है ना. At any point of time when we are executing our audit, and after the audit completion also, that remains very important. And again, that documentation part, what it brings the transparency and the accountability. Without the documentation we can't judge or decide anything, right? So when we don't have any evidence, we don't have any documentary proof with us, in absence of that documentation, in absence of that proof, we never came out with anything. So like we always said in our trainings, and while we explain some things to our associates or team members, that always put the remarks, always put the things on email for the documentation purpose. In our last training session also, which we had for the team leaders only, so we again convey this message that always put the things on email, है ना. Whenever you close some observation, whenever you have discussed something, always keep it on mail. Why we have to keep it on a mail? For documentation purpose, because the conversation will always remain valid and legal whenever comes to in the closer part of the audit, and at any point of time whenever it is required, because a verbal communication, a verbal information will never exist in audit. So we have to document each and everything while we are performing our audit. That's a very important aspect. And again, as a legal protection also, let's suppose you came out with something, and in our techno commercial audit, in our recovery segments, where we came out with some recoveries from the contractor, we came out some billings to the client which we missed to claim, some extra claim, there are so many things. So if we are putting these kind of things, then in that case our documentation will work as a legal protection for the client.
So on what basis, on what grounds we are claiming that you need to deduct something from the subcontractor and you need to recover something from that contractor? On what grounds or basis we are claiming that this claim needs to be raised to the client for some extra revenue? So obviously for the compliances purpose, for the legal purpose, and for the accountability purpose, these audit documentation matters. So always, in our technical audit findings, especially, sometimes we observe that there are lack of documentation. So many things float on the basis of the verbal communication. So those things and those information can never be a part of our audit report if those things were not documented via email, or the things were not get signed off by the respective whoever the concerned person was there. So that things we have to keep in mind always while we are doing any kind of audit. And again, I am saying you that this is not applicable only for our kind of assignments which we are doing as a techno commercial audit, but remains valid for any kind of audit you will do in your future. So audit documentation is a very important thing in an audit, and a very important part of our audit. So first we need to understand, so what are the working papers? So working papers, you might listen so many times, you might hear the things that working paper, where working papers, what are the working papers, but what are these working papers in actual? So these documents, these papers, these information are the comprehensive records that document our audit procedures, है ना? How we are executing our audit, how we came to some conclusion, how we derive something. So those all things together in some information, in some document called the working papers. So without sufficient working papers, without valid working papers, we can never came to a conclusion. And working papers is not for the something which you have kept in your report. Working papers also include for those areas which you have checked but may not be a part of your report. Like we came with a comprehensive checklist while we went to some audit. So that comprehensive checklist might cover maybe around 100 line items, but it might not be possible that in all those 100 line items you have got something as an observation which you need to report in your final report. So if you have checked, so maybe you got in some 10, 12 or 15 line items where you have to report something, but apart from these 15 line items, for those 85 line items also, you need to have your working papers, that yes, you have checked those line items, you have uh, prepared your working papers, and these are the backup of your audit checking and audit verification, that you came out or may not came out with something. Whether you find something or not find something, that's a different area, but your proper working papers matters. So we need to keep the working papers for everything, irrespective that those areas are covering in our audit report or not. So that thing we have to take care always. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट में जो 15 पॉइंट आपने लिखे, 15 ऑब्जर्वेशन लिखी, उनसे ही रिलेटेड वर्किंग पेपर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे. जो पॉइंट्स आपकी रिपोर्ट में नहीं है उनके वर्किंग पेपर तो और स्ट्रांगली आपके पास होने चाहिए. Why these areas are not covering in our audit report? How we checked? Is there any chances it might be possible that we might miss something? So those working papers should be there, always be there. All right. So what are the benefits of efficient data management in audits, है ना? इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा अगर हम जो अपना डाटा है, जो अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं या वर्किंग पेपर्स हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, उससे क्या होगा? सो डैट विल एक्सेलरेट योर एग्जीक्यूशन पार्ट. उससे क्या होगा ना, हमारे ऑडिट का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. हाउ इट विल इंक्रीज योर ऑडिट स्पीड? बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिव्यू, at the time of reporting, at the time of making the MOM, you already have everything to show, to present and to discuss. Otherwise what has happened ना कि हम एक observation discuss कर रहे होते हैं, either with our reviewer, either with the client, either with the management or with anybody. So at that moment when the reviewer or the client has asked you something, and then at that moment if you are not having your sufficient data with you, sufficient working papers with you,
then again you will go check the records, hunt the files and search for the documents and then came out with something. So वो सब चीज़ हमें मिटिगेट करनी है, वो सब चीज़ हमें सिस्टम से हटाना है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी पॉइंट रिव्यू हो रहा है तो वो दैट रिव्यू शुड नॉट लास्ट मोर देन 5 मिनट्स मैक्सिमम. वो इतना आपके पास उसका कंटेंट रेडिली अवेलेबल होना चाहिए कि एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर, all those evidences, all those backups, all those working has to be there in one place. So सबसे पहली चीज़ आपका एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट रहेगा तो आपका ऑडिट का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका रिव्यू का टाइम ड्रास्टिकली चेंज होगा, आपका डिस्कशंस का टाइम ड्रास्टिकली चेंज होगा, आपका रिपोर्ट मेकिंग का टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो डैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस और ओवरऑल ऑडिट जो टाइमलाइंस हैं वो. सो क्या होगा, सेकेंडली क्या होगा, डैट एनहांस्ड योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. जब हम कोई रिपोर्ट ड्राफ्ट करने बैठते हैं अबाउट सम ऑब्जर्वेशन, सो क्या होगा ना, एट दैट टाइम जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो यू मे बी हैविंग थॉट ऑफ सो मैनी थिंग्स कि अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट करता हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दैट वी हैव इशूड सम लीटर्स ऑफ डीजल टू सम कॉन्ट्रैक्टर एंड that has not recovered, so this is the financial implication of the same. तो ड्राफ्ट करते टाइम ही क्या होता है कि जब हमारे पास वर्किंग पेपर्स होते हैं तो वी केम आउट विद समथिंग मोर ऑल्सो, है ना. अगर उस टाइम पे सब कॉन्ट्रैक्टर का वर्क ऑर्डर भी मेरे पास है, स्टोर से इशुएंस के रिकॉर्ड भी मेरे पास हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर को उसने जिस मशीन में वो डीजल यूज़ किया उस मशीन की लॉगबुक भी मेरे पास है, तो शायद आपके पास और 4 ऑब्जर्वेशन उससे आ जाए एंड आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग की एक्यूरेसी है वो और इम्प्रूव हो जाए, और आपको रिपोर्ट को राइट करने के लिए और अच्छे ग्राउंड्स मिल जाते हैं जब आपके पास वर्किंग पेपर्स एफिशिएंटली होते हैं. अगर मेरे पास वर्क ऑर्डर ही नहीं है, मैंने जस्ट देखा कि मैंने स्टोर से डीजल इशू किया था, इतने लीटर डीजल इशू किया, मैंने वहाँ स्टोर पर्सन से डिस्कस किया कि सर ये फ्री इशू है या डेबिटेबल है, उसने बोला सर डेबिटेबल है. यू केम बैक टू योर ऑफिस, यू राइट द ऑब्जर्वेशन, आपने लिखा कि एज डिस्कस विद द स्टोर पर्सन दिस इज डेबिटेबल बट इज नॉट एट डेबिटेड टिल डेट. बट इस केस में हमने एक पार्ट पूरा मिस कर दिया कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं एंड उनकी एक्यूरेसी हमने चेक ही नहीं की कि एज पर वर्क ऑर्डर पहली बात तो इशू होना भी था या नहीं होना था. डेबिटेबल एंड फ्री इशू तो सेकेंडरी है. अगर इशू होना ही नहीं था तो देन ऑन मतलब बाय होम अथॉरिटी भी इशूड द सेम. देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, मैं आपको दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस टुडेज ट्रेनिंग सेशन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार आप चीज़ देखोगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स को मटेरियल इशू हो रहा होता है, डीजल इशू हो रहा होता है, या प्लांट एंड मशीनरी हम लोग उसको दे देते हैं अपनी यूज़ करने के लिए, एंड वो फिर बाद में डेबिट हो रहा होता है, मंथली बेसिस पर डेबिट हो रहा होगा. आप उनके वर्क ऑर्डर में जब देखते हो तो वहाँ आप देखते हो कि भाई उसके वर्क ऑर्डर में ऐसा कुछ रिसोर्सेज देने का प्रोविज़न है नहीं, वो उसको अपने डिप्लॉय करने हैं. बट आपने बोला कि सर हमने अपने रिसोर्सेज दिए थे बट उन्होंने रिकवर किया है, सो डेट्स ओके, मतलब इसमें तो कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं. द पॉइंट इज़ डैट कि अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 10 करोड़ का ऑर्डर दिया, 10 करोड़ का ऑर्डर आपने दिया, उसका एक BOQ आइटम आप लोगों ने क्रिएट किया होगा जिसके अगेंस्ट में एक रेट डिराइव किया होगा. वो रेट कैसे ड्राइव होता है गाइज? वो रेट ड्राइव करने के लिए जो बेसिस है वो क्या है कि उस सब कॉन्ट्रैक्टर की कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी उस प्रोजेक्ट पे. अगर मैंने किसी चीज़ का उसको X रेट दिया है तो लेट्स सपोज अर्थवर्क का काम उसको करना है, तो अर्थवर्क का काम करने के लिए उसको अर्थवर्क इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट हैवी मशीनरी ओनली. तो वो मशीनरी उसको लेके आनी है, वो एक्सकेवेटर उसको लेके आना है, वो लोडर उसको लेके आना है, जो एक मेन सेगमेंट है अर्थवर्क के काम के लिए. वो क्या करता है, आपसे 10 करोड़ का ऑर्डर ले लिया, साइट पे आ गया हाथ हिलाता हुआ और आपसे बोलता है यार मशीन तो मैं डिप्लॉय कर नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू एनी रीज़न. आपके पास आपका एक्सकेवेटर है, आपके पास आपकी मशीनरी है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, मेरे से रिकवर कर लेना, डेबिट कर लेना. तो आपने बोला ठीक है जी कर लेते हैं. आपने वो आपकी मशीन यूज़ करे जा रहे हैं, आप उसका डेबिट करे जा रहे हो. कितने कितने सारे यहाँ पर इश्यूज़ निकल के आएंगे, है ना. बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे निकल के आएंगे. एक तो आपने उसको दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनऑथराइज एडवांस गिवन टू सब कॉन्ट्रैक्टर. जो मशीन वो आपकी यूज़ कर रहा है, वो मशीन यूज़ करके जब वो अगर वो अपनी मशीन लाता, वो अपना काम करता, 1 महीने काम करता पहले, उसके बाद उसका बिल बुक होता, देन 1 महीने का क्रेडिट पीरियड रहता, तो यानी मोटा मोटी जाके उसका 2.5 से 3 महीने के बाद वो पेमेंट उसको जाना था. अभी उसने क्या किया कि वो काम किया, 10 लाख का काम उसने किया, वो 10 लाख उसको मिलने थे लेट्स सपोज आफ्टर 3 मंथ्स.
उसका बिल बनने से लेके अप्रूवल होने से देन क्रेडिट पीरियड कंसिडर करने तक। अब आपने क्या किया, अपनी मशीनरी लगा के उसको काम करवा दिया। आपने बोला 10 लाख में से 7 लाख तो मेरी मशीन का ही मैं डेबिट कर लेता हूँ, 3 लाख रुपए मैं उसको दे देता हूँ। तो ये जो 7 लाख रुपीज़ आपने उसको जो डिडक्ट कर लिया मंथली बेसिस पे, ये तो आपकी मशीन था, ये तो आपकी मशीन कहीं यूटिलाइज हो सकती थी। या अगर आपने मशीन रेंट पे ले रखी है तो आपके ऊपर तो उस मशीन का रेंट चलता रहा ना। सो देयर इज़ नो पॉइंट। तो ये मतलब ये चीज़ें होती हैं, ये हमें इस तरीके से रिव्यू करना चाहिए अपना जो भी, जब हम वर्क ऑर्डर्स किसी कॉन्ट्रैक्टर का रिव्यू करते हैं तो टेक इट वेरी सीरियसली। वंस वी आर इशूइंग एनीथिंग टू सब कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट दैट क्लॉज हैज़ टू बी इन देयर वर्क ऑर्डर, देन उसके बाद सेकेंडली होता है कि फ्री इशू है या डेबिटेबल है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। विद मेटल वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो स्पेशली हमेशा हमें ध्यान रखना है। सो लेट्स कम बैक टू द आवर टॉपिक। तो इससे क्या होगा, जब हमारे पास ये सारा बैकअप रहेगा ना गाइस, तो हमारी एक्यूरेसी जो होती है ना वो और इम्प्रूव होती है। जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो ओमिशंस के चांसेस होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होता है उस टाइम पे। मैं सारी चीज़ें इंटर रिलेट कर सकता हूँ, दैन अपनी एक पावर रिपोर्टिंग दे सकता हूँ जो कि फ्रूटफुल होगी क्लाइंट के लिए। तो इसलिए डाटा मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इजी रिट्रीवल अगेन क्या होगा कि आप मतलब एफर्टलेस चीज़ें चेक कर पाओगे, रिव्यू करवा पाओगे अपना, जो भी चीज़ें आपको रिलेट करनी है रिपोर्ट राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी। आप 4 चीज़ों का रेफरेंस लेके जब रिपोर्ट लिखते हो तो डैट कम्स विद एन ऑथेंटिकेशन, है ना। एक वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है जब उसमें रेफरेंसेस आप यूज़ करते हो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के, इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट एक डॉक्यूमेंट के बदले। हमेशा कभी भी सिंगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कोई जजमेंट हमें नहीं देना है। देयर हैज़ टू बी मिनिमम 2 to 3 डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे हम जजमेंट दें। सबको रिलेट करके हमें जजमेंट देना होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब डाटा मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट होता है ना, तो उससे कोलैबोरेशन एंड टीम की जो बॉन्डिंग होती है ना वो एक अच्छी होती है। कैसे होती है अभी हम आगे बात करेंगे। जो हम जिस हिसाब से हम डाटा मैनेज करें, अगर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सेम हायरार्की में सेम मैनर में सब कोई डाटा मैनेज करेगा तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी टीम मेंबर्स का डाटा समझना, किसी भी टीम मेंबर से डाटा एक्सचेंज करना, और किसी भी टीम मेंबर की वर्किंग लेके उस वर्किंग को अपनी रिपोर्ट में एग्जीक्यूट करना। हर कोई अपनी तरीके से डाटा अगर मैनेज करता रहेगा तो क्या होगा कि एज अ टीम लीडर अगर मैं बात करूँ, मेरे अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं। सो वो 4 लोग जब अपना डाटा अलग अपने अपने हिसाब से मैनेज करते रहेंगे, और जब मुझे वो डाटा को क्लब करने की रिक्वायरमेंट होगी एट लास्ट, जब मैं उससे रिपोर्ट ड्राफ्टिंग करूँगा या कुछ भी एनालिसिस करूँगा, तो सोचो मुझे 4 अलग अलग एनर्जीज 4 बार अलग अलग तरीके से डाटा को चेक करना पड़ेगा। वॉट इफ के वो चारों का जो डाटा मैनेज करने का तरीका है, जो डाटा को कलेक्ट करने का एंड जो स्टोर करने का तरीका है, अगर सबका सेम होगा तो कैन यू इमेजिन कितना ईजी होगा सबके लिए वो डाटा को रिट्रीव करना एंड उस डाटा को रीड करना। सो हमारा वही गोल रहेगा आज की ट्रेनिंग के बाद कि डाटा मैनेजमेंट सबका एक सेम पैरेलल ग्राउंड पे होना चाहिए, एक सेम पैटर्न में होना चाहिए। यहाँ पर किसी को अपनी R&D नहीं लगानी है, दैट R&D वी ऑलरेडी डिड इन पास्ट, एंड उसी मैनर में सबको डाटा मैनेज करना है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट। अब हमें ये समझना है कोई भी डाटा हम जब स्टोर करें तो उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मैनी टाइप ऑफ डाटा इज देयर, हाउ मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। सो वन इज परमानेंट फाइल्स, अदर इज करेंट फाइल्स, एंड थर्ड इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सो तीनों में डिफरेंस है। परमानेंट फाइल्स क्या होते हैं, व्हेन वी आर एट ऑडिट एंड वी आर एट ऑडिट विच इज़ काइंड ऑफ कंकरेंट एंड रिपीटेबल इन नेचर, है ना, कि वो हर 2 से 3 महीने बाद रिपीट होना है, क्वार्टरली रिपीट होना है, या एवरी मंथ वी आर देयर ओनली। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एक तो सेगमेंट रहेगा परमानेंट फाइल्स का। परमानेंट फाइल्स लाइक अगर क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट आपका है, क्लाइंट का जो वर्क ऑर्डर है, अगर कोई क्वेरीज हैं तो वी विल टेक आफ्टर दिस सेशन ओनली। सो परमानेंट फाइल्स क्या रहेंगी कि जब भी क्लाइंट के साथ जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है ना, कि जब आपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट आपका हो गया या क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके एग्रीमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट की बजटिंग हो गई, है ना, प्रोजेक्ट के प्लानिंग्स हो गई इनिशियल, जो आपका कंक्रीट के डिज़ाइन मिक्सेस हो गए, मतलब हर डिपार्टमेंट वाइज देयर इज़ अ मास्टर फाइल, देयर इज़ अ परमानेंट फाइल, जिससे वो जो डाटा रहेगा वो आपको हर महीने मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो डाटा एक बार आपने कलेक्ट कर लिया तो वो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरी टीम जा रही है तो अगेन वो डाटा को क्लाइंट से वहाँ रिक्वायर्ड करें। दैट डाटा हैज़ टू बी अवेलेबल इन अवर परमानेंट फाइल सेक्शन, है ना, वो हमेशा उस हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। सो दैट परमानेंट फाइल सेगमेंट इज़ फिक्स्ड, वो
बार बार चेंज नहीं होएगा, चाहे आपका प्रोजेक्ट 3 महीने चल रहा है, 6 महीने चल रहा है, यस वहाँ पर रिवीजन हो सकते हैं, पॉसिबल है क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कभी कोई रिवीजन या अमेंडमेंट आया हो, वो आप टॉपअप करके रख सकते हो, बट दैट परमानेंट फाइल्स रिमेन्स टू बी, मतलब आपके पूरे टेन्योर के लिए वो फिक्स रहेंगी. नाउ कम टू द करेंट फाइल सेक्शन. करेंट फाइल सेक्शन में क्या रहेगा कि जो आप रेगुलर जब जा रहे हो तो आप जो साइट पे जाने से पहले जो अपनी चेकलिस्ट रेडी कर रहे हो, अपनी जो प्लानिंग रेडी कर रहे हो, जो सैम्पल आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपकी जो सैम्पलिंग कर रहे हो, देन उसके बाद उस मंथ में जितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स आप कवर कर रहे हो, जो बिल्स कवर कर रहे हो, ऑल दोज थिंग्स कम्स इन दैट करेंट फाइल सेगमेंट. तो उसको कैसे मेंटेन करना है, दैट विल टॉक अबाउट. जो आपकी उस महीने की ऑडिट फाइंडिंग है, जो आपका उस महीने की ऑडिट रिपोर्ट है, मतलब जो उस पर्टिकुलर ऑडिट से ही खाली रिलेटेड है, जो फ्यूचर में आपका काम नहीं आने वाला है अदर देन योर ATR ओनली. ठीक है, वो आपका करंट फाइल्स में आएगा. एंड थर्ड इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक कि जैसे जब आप रिकन्सिलेशंस कर रहे हैं तो रिकन्सिलेशंस करने के लिए देयर आर सो मैनी थिंग्स यू हैव टू चेक एंड रिलेट. तो वो जो बैकअप रहेंगे, जो स्टोर्स के बैकअप रहेंगे, आपने MB51 से आप रिकॉर्ड लगाओगे, आप SAP से रिकॉर्ड लगाओगे, जहाँ से भी लगाओगे, वो सारे क्या है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी करंट फाइल को सपोर्ट कर रहे हैं. यानी जो करंट फाइल्स में जो भी आप ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हो, जो भी डाटा रिपोर्ट कर रहे हो, जो भी सब चीज़ें कर रहे हो, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ जाएगा, उनके बैकअप है ना. जैसे क्लाइंट के कॉरस्पॉन्डेंसेज हो गए, तो क्लाइंट के कॉरस्पॉन्डेंसेज लाइक कि वो मतलब आपका वो फिक्स नहीं है, वो रेगुलर आपके अपडेट होते रहेंगे. और वो खाली आप करंट में भी रख दोगे तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन कॉरस्पॉन्डेंस उस टाइम के लिए रिलेवेंट हो. आपको कॉरस्पॉन्डेंसेज पूरा पास्ट में जाके चेक करने होते हैं. तो डैट documents remains to be a separate division which is a supporting documentation part. आपका कोई डिक्लेरेशन आपने क्लाइंट से लिए हैं, आपने कोई MOM इंटरनल MOM साइट ने निकाला है, कोई ऑफिस मेमो साइट ने निकाला है, वो सब आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हो. तो ये 3 टाइप के सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए कि किस किस टाइप का डाटा हमारे पास रहता है हमारे सिस्टम में. Now managing folders and files. So this is a very important discussion. And इसके आगे जो जितने भी सेगमेंट आने वाले हैं, जो जितनी भी स्लाइड्स आने वाले हैं, those are very important. फोल्डर मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट इज सेम थिंग. तो जो हम डाटा मैनेजमेंट की बात करते हुए आ रहे हैं, देखिए क्या होता है कि अभी मोर और लेस 90% और मे बी मोर देन 90% जो डाटा है हमारे पास वो सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल हमें मिल जाता है. ओनली 10% विच कम्स टू द आपके जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ, वो आपको हो सकता है कि खाली हार्ड कॉपी में मिलें. आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेजरली रहेंगे वो हो सकता है आपको हार्ड फाइल्स में, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स हो गए, है ना, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हो गई, दो उनका भी वो सब PDF जनरेट करके सिस्टम में सबका अपलोड होता है. बट यस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो वाले कुछ पार्ट्स हैं जो आपको हो सकता है आपको हार्ड कॉपीज़ में मिलें. तो अगर हार्ड कॉपीज़ में मिल भी रहे हैं तो यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि हम उनको स्कैन करके कन्वर्ट करके सॉफ्ट रिकॉर्ड में मेंटेन रखें, जिससे कि वो शेयरेबल इजीली हो एंड उसकी जो मतलब यूजेबिलिटी है वो आगे के लिए बनी रहे. क्योंकि क्या होता है कि जब हार्ड फाइल्स होती हैं एंड फ्यूचर में अगर आपको वो फाइल कभी रेफ़र करनी है, तो हार्ड फाइल तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, तो एट दैट मोमेंट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगेन वो डॉक्यूमेंटेशन रिट्रीव करना. सो वी हैव टू ट्राई ऑलवेज कि जो भी डाटा है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल उसकी ज़रूर हो. तो एक लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर सबका होना चाहिए. लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर मीन्स कि मतलब सेम पैटर्न में सबका होना चाहिए, है ना. एक ऐसा नहीं है कि आप आज एक क्लाइंट का काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट का RA बिल आपने एक जगह स्टोर करके रखा है, एक ड्राइव में स्टोर करके रखा है, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के लिए आपने ड्राइव ही दूसरी बना रखी है, उसका प्लानिंग और स्टोर रिलेटेड डाटा आपके डेस्कटॉप पे पड़ा है सामने, आधा डाटा उसका मेल पे पड़ा है, वहाँ से डाउनलोड ही नहीं किया गया है, या डाउनलोड करके डाउनलोड सेक्शन में ही पड़ा है. सो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एक फोल्डर का सबका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कोई भी पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन अगर वो आपके साथ उसने काम नहीं भी किया है, स्टिल इफ़ यू वांट टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेस्कटॉप, फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर फोल्डर, he will be easily could find that information from your system. So उस लेवल तक का हमें अपना जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो करना पड़ेगा. नेमिंग कन्वेंशंस मीन्स कि क्लाइंट RA बिल अगर है तो उस क्लाइंट RA बिल का नाम सबका क्लाइंट RA बिल ही हमें रखना है.
वो मैं किसी और नाम से उसको यूज़ ना करूँ। फिर फोल्डर का जो नाम है अगर मैंने रखा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, तो वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर बिल ही सबका सबका फोल्डर, उस फोल्डर का नाम जहाँ पर हमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल रखने हैं, सबके सिस्टम में वो सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे हाईवे यूज़ कर रहा हूँ तो सब उस चीज़ को हाईवे ही यूज़ करें, अपने हिसाब से मुझे नाम डेवलप नहीं करने। कई लोगों की आदत होती है वो पहले फोल्डर से पहले डेट लिख देंगे, फिर उसके बाद नाम लिख देंगे, या नाम लिख देंगे उसके बाद डेट लिख देंगे, या अंडर स्कोर करके कुछ लिख देंगे, या कई लोग तो लिख देंगे कि अपना नाम चेतन अंडर स्कोर सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, चेतन अंडर स्कोर आर ए बिल। ये सब पैटर्न हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सबका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सबका आइडेंटिफायर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जस्ट आप ये समझ लो कि कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, सॉफ्टवेयर वो चाहे दुनिया में कोई भी यूज़ करे, उसके लिए जो नेमिंग कन्वेंशन है या जो सॉफ्टवेयर का फ्लो चार्ट है वो सेम ही रहने वाला है सबके लिए, अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो उसी मैनर में हमारा डाटा हमें इफ़ेक्टिवली सिस्टम में स्टोर करके रखना है। एंड टेक्निकल डाटा भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल डाटा को रिट्रीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं टीम्स को, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से भी देखेंगे। आगे जो फोल्डर मैनेजमेंट का जो फ्लो चार्ट हम आपको दिखाएंगे एंड वो शेयर भी कर देंगे, उसी फ्लो में सबका डाटा मैनेज होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव यू आर अ टेक्निकल गाय, यू आर अ कॉमर्शियल गाय, यू आर एन एसोसिएट्स, यू आर अ टीम लीडर, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट सबका सेम होना चाहिए। डेट्स ऑल। क्रॉस रेफरेंसिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग क्या क्या है कि जितना भी जो भी हमारे वर्किंग पेपर है उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ रेफरेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्या होता है, एनेक्शर्स रेडी होता है, रिकन्सिलेशन का एनेक्शर रेडी है, वहाँ पे आ गया वेरिएशन 5% 10% अमाउंट आ गया, वहाँ पे स्टोर्स की क्वांटिटी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। अब स्टोर्स की क्वांटिटी के आगे एक अमाउंट लिखा हुआ है, स्टील का क्वांटिटी लिखी हुई है 5000 टन। अब वो 5000 टन कहाँ से आया है वो उसका वहाँ रेफरेंस ही नहीं है, या मैं उसको क्लिक करूँ उसको मैं कहीं ड्राइव ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब पूछेंगे सर ये 5000 टन कैसे है, तो एक दूसरी फाइल खुलेगी, उस फाइल में से वो 5000 टन का टोटल दिखाया जाएगा और फिर वो जाके फिगर तुम्हारी ऑथेंटिकेट होगी। ऐसी बात आएगी इशू की, इशू में जब आएगा कि 4500 टन, तो अगेन 4500 टन पर जा रहे हैं, तो डैट इज़ मैनुअली रिटर्न। अब ये कहाँ से डाटा आया है, तो हो सकता है कि उसी आपकी जो वर्कबुक है, जो एक्सेल की वर्कबुक है जहाँ पर हम एनेक्शर देख रहे हैं, उसी वर्कबुक में हो सकता है इशू की क्वांटिटी लिखी होगी, बट डैट इज़ नॉट लिंक्ड। वो लिंक नहीं है वहाँ से। वो क्या है, वो दूसरी शीट खोली जाएगी, वहाँ पर ऐसे टोटल मार के दिखाया जाएगा, नीचे टोटल लिखा होगा, हाँ जी ये यहाँ से आया। सो दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग। वो लिंक मतलब वो जहाँ 4500 आपने जो लिखा है उस 4500 पे समवन हैज जस्ट टू क्लिक एंड वो 4500 का बैकअप उसको दिख जाना चाहिए विद सोर्स। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी भी जो जो ओरिजिनेट फाइल है, जो जो मतलब ओरिजिनल फाइल है जहाँ से वो डाटा आया है, उसका लिंक कभी ख़त्म नहीं करना है। देखो क्या होगा, जब भी आप स्टोर के रिकॉर्ड को यूज़ करोगे फॉर रिकन्सिलेशन पर्पज़ या फॉर एनी पर्पज़, सब कॉन्ट्रैक्ट इशू पर्पज़, एनीथिंग, तो वो लिंकिंग रहनी चाहिए। अब क्या होगा कि वो जो पूरा डंप है MP51 उसको तो आप यूज़ करोगे नहीं, उस MP51 को आप पहले दो पार्ट में इनवर्ड में लेके जाओगे, एक जगह आउटवर्ड में लेके जाओगे, रिटर्न्स में लेके जाओगे, फिर उसके बाद वो जो आउटवर्ड किया होगा आप उसको पाइवट खींच के अगेन सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज लेके जाओगे। सो वो लिंकिंग हर एक शीट की रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक पाइवट लगाया था स्टोर्स की क्वांटिटी का, वहाँ पर आपने पाइवट भी नहीं लगाया, आपने क्या स्टील का फिल्टर लगाया, TMT सर्च में डाला, TMT के नाम से जितनी क्वांटिटी आ गई इशू क्वांटिटी कॉपी करी, एक एक्सेल में पेस्ट करी, देन वहाँ से उसकी समरी बना के ले ली, भाई ओरिजिनल फाइल तो लॉस्ट हो गई ना। अब वो जो आपने इशू का डाटा जो पेस्ट किया एक एक्सेल शीट में, उसको अगर मुझे चेक करना हो तो क्या मैं वापस से ऐप खोलूँ, मैं वापस वहाँ से MP51 देखूँगा फिर उसको चेक करूँ, तो अगेन वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। वो लिंकिंग जो ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है, वो मेंटेन रहना चाहिए हमेशा किसी भी डाटा में। ये हमने एक एग्जांपल दिया क्योंकि स्टोर्स का डाटा इज समथिंग विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर, सब कॉन्ट्रैक्टर बिल में भी यूज़ होगा, क्लाइंट के लिए भी यूज़ होगा, रिकन्सिलेशन में तो यूज़ होता ही होता है। सो इट्स रिलेटेबल विद एवरी डिपार्टमेंट, तो इसलिए मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे ही अगर सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स रिगार्डिंग कुछ है, आपने जब सब कॉन्ट्रैक्टर का जो एक्सेल बिल है उसको आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया सर्टिफाइड कॉपीज़ के साथ, अब आप उस एक्सेल पे जब वर्किंग करना शुरू करते हो तो उस एक्सेल का जितना भी पीछे बैकअप है उसी शीट में लगा हो, उसकी जो इशू क्वांटिटी है अगर वो वहाँ पर खाली उन्होंने पंच करके लिखी थी उसका रेफरेंस होना चाहिए। हमारी स्टील क्वांटिटी अगर हमने कुछ अलग ली है तो वहीं पर उस शीट में अपडेट होना चाहिए।
मतलब आपकी जो जो भी फाइनल फिगर आ रही है ना, उसकी लिंकिंग एक बैकअप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ होनी चाहिए, जो कि एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, एक ऑथेंटिकेट डाटा हो। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ वर्जन कंट्रोल, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। क्या होता है कि हम लोग रिकन्सिलेशन करते हैं, रिकन्सिलेशन में वी केम विद समथिंग, एक वेरिएशन निकाला और उसमें, अब वो वेरिएशन क्या है कि वो सही है, वो गलत नहीं है, जो पूरा बैकअप है और जो सारी चीज़ें उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नाउ क्लाइंट कम केम अप विद सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो कहता है कि आप ये भी कंसिडर करो, लाइक इंफ्रा क्वांटिटी बोलता है या कुछ भी चीज़ें बोलता है, या कभी क्लाइंट कुछ ऐसी चीज़ें आपको जस्ट मेल पर लिख के दे देगा, हो सकता है उसका बैकअप ही ना हो। इंफ्रा के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि उसका बैकअप नहीं होता, वो कुछ भी आपको एक या तो मेल पे लिख के दे देता है, या कोई पुराना डॉक्यूमेंट निकाल के दे देता है कि लमसम इसमें इतना लगा था। तो आपका जो ओरिजिनल वर्जन है वो ओरिजिनल वर्जन वही होना चाहिए। उसके बाद आपको वर्जन क्रिएट करने आने चाहिए कि डैट इज़ वर्जन 1.1, जिसमें आपने वो इंफ्रा की क्वांटिटी कंसिडर करके आपका ये वेरिएंस आया है ना। मतलब जब जब चीज़ें आप अपडेट होती रहें तो आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं कर देना है, क्योंकि आपकी वर्किंग वो सही है। उस वर्किंग में कुछ अमेंडमेंट है तो यू हैव टू क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ दैट, है ना। जब आप फर्स्ट रिपोर्ट करके देते हैं, कई बार क्या होता है ना कि आपने एक रिपोर्ट दी, उसमें आपने 15 ऑब्जर्वेशन दी। अब क्या होगा, जब एज अ रिव्यूअर या एज अ मैनेजमेंट लेवल पे वो रिपोर्ट जाएगी, तो वो 15 ऑब्जर्वेशन हो सकता है क्लब करके 12 ऑब्जर्वेशन बन जाएंगी, क्योंकि 2-3 ऑब्जर्वेशन मर्ज कर दी गई होंगी किसी में, उनका लो इम्पैक्ट होगा या वो क्लब करके ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही होंगी। अब वो रिपोर्ट बनने के बाद दैट डजंट मीन्स कि जो आपके 15 ऑब्जर्वेशन वाली रिपोर्ट थी उसको आप डिलीट करके और ये 12 ऑब्जर्वेशन वाली रिपोर्ट को बस अपने पास रख लोगे। आपके पास वो वर्जन क्रिएट रहना चाहिए कि वो ओरिजिनल वर्जन आपके पास था, अब जो वर्जन आपके पास अपडेटेड है दैट इज़ 1.1। क्योंकि जो आपने रिपोर्ट पहले ओरिजिनल बनाई थी उसमें जितना डिटेल में चीज़ें आपने अपने हिसाब से लिखी होंगी, हो सकता है वो चीज़ें समराइज करके एक दूसरी लैंग्वेज में आगे लिख गई होंगी। तो समटाइम इट मे हैपन कि जब आपसे उसका रेफरेंस मांगा जाएगा अपडेटेड रिपोर्ट का, आपको उतना क्लैरिफिकेशन ना हो, तो उसके लिए आपके पास वो आपकी बैकअप रिपोर्ट होना ज़रूरी है। कई बार ये भी देखो, ह्यूमन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं कि जब जो फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट आपकी कर रहा हो सकता है उस टाइम पे कोई अमाउंट में वेरिएशन आ जाए या कुछ वर्डिंग में ऐसा चेंज आ जाए, जब वो फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट हो रही है उस टाइम पर आपको समझना है ये अमाउंट और या वर्ड कहाँ से है। तो अगर उसके लिए आपके पास ओरिजिनल वर्जन ऑलरेडी मेंटेन होगा तो डैट विल हेल्प यू कि ये फाइनल अमाउंट था, तो ये अमाउंट अगर चेंज हुआ तो डेट माइट बी सम, देयर माइट बी सम अमेंडमेंट इन द रिकॉर्ड इटसेल्फ और इट माइट बी सम ह्यूमन मिस्टेक। तो वर्जन हमेशा रखना है। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जस्ट डिलीट कर देते हैं फाइल एंड नई फाइल आ गई। अब जब उनसे पूछा जाता है कि भैया ये पहले वाली चीज़ कहाँ से आई थी, तो वो डाटा ही अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है, वर्जन कंट्रोल रखना है। देखिए मैंने अभी बोला था कि हमें डाटा मेजरली सॉफ्ट में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जो हार्ड डॉक्यूमेंट है उसको मैनेज करने के चैलेंजेस होते हैं, आपको पता है। एक तो स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का इशू रहेगा। एक टाइम होता था जब इट्स 13-14 साल पहले जब हम ऑडिट करते थे तो उस टाइम पे फाइलें इतनी ज़्यादा बनती थी, मतलब बिलिंग की एक अलग फाइल इतनी मोटी सी फाइल हो जाती थी, बॉक्स फाइल, स्टोर्स की बॉक्स फाइल अलग रेडी हो जाती थी, मतलब 2 लोग ऑडिट करने जा रहे हैं 5-7 फाइलें हो जाती थी बॉक्स फाइल। तो इतना तो अपना मतलब लगेज नहीं होता था आपका पर्सनल, जितना आपका डॉक्यूमेंट्स का लगेज हो जाता था। तो वो उस टाइम था, उस टाइम पे चैलेंजेस थे, उस टाइम पे एसएपी नहीं था उतना सिस्टम में, उस टाइम पे चीज़ें उतना सॉफ्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे थे। बट अभी आप देखोगे कि इतना ज़्यादा सारा चीज़ें जो ऑनलाइन है, वर्चुअल हैं, कि आपको वहाँ से डाटा लेना एंड एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो स्टोरेज और वो सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है उससे बचने के लिए हमें ट्राई करना है कि हार्ड डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हो। रिस्क ऑफ लॉस रहता है हार्ड डॉक्यूमेंट में। फाइल में पेपर लगा के चले गए, किसी से साइन करवाया था, फिजिकल किया था, साइन करवा के ऐसे ही फाइल में रख गए, या डायरी में कहीं पड़ा है वो पेज, या कहीं टेबल पे ऐसे ही छोड़ दिया, मिस हो गया। सो दीज आर द चांसेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होता है, बट चांसेस है ना, उसमें लॉस होने का चांसेस है हार्ड फाइल के। कोई पेज एक निकल गया, इंपॉर्टेंट पेज निकल गया जिस पे साइन थे, 10 पेज की कोई आपका डाटा था जिसके लास्ट पेज पे आपने साइन करवाया था, वो लास्ट पेज ही गायब हो गया, क्या करोगे? ख़त्म, है ना। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। टाइम कंजम्पशन बहुत होता है, अगर आपको कोई रिट्रीव करना है डाटा हार्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वो हमें अवॉइड करना है। एंड अगेन इसमें वर्जन कंट्रोल करना कितना, सोचो कितना मुश्किल होगा
क्या आपके पास कोई सब कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट था, बाद में आपको पता चला नहीं इसका तो दूसरा अमेंडेड एग्रीमेंट है, अब वो ट्रैक नहीं होगा। मान लो किसी ने हेड फाइल लिया, उसके पास कोई ओरिजिनल पहले वाला डॉक्यूमेंट रखा है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी है? तो सॉफ्ट रिकॉर्ड में क्या होगा कि वो वर्जन्स पता चल जाएंगे, जहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट आपने डाले होंगे वहीं पर वो दूसरा वर्जन उसका अपडेटेड वाला दिख जाएगा लोगों को। तो ट्राई टू मेंटेन द बैकअप द डाटा इन द सॉफ्ट फॉर्मेट ओनली until less बिल्कुल ही आपके लिए पॉसिबल ना हो कि आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हार्ड डॉक्यूमेंट कलेक्ट ही नहीं करना है, कलेक्ट करो, अगर पॉसिबल है ऑफिस में आके उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर लो, पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, वो तो मतलब लास्ट हमें उसको लीस्ट उस पर रखना है कि अगर हार्ड डॉक्यूमेंट रखना ही है तो वो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा, मोटी मोटी फाइल्स नहीं चाहिए हार्ड डॉक्यूमेंट्स की। अब अगेन यही जो डाटा मैनेजमेंट की डिफ़िकल्टी है, इससे हम कैसे ओवरकम करेंगे? मैंने आपको बोला हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमारा एक ऑडिट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर सिस्टम में है, जहाँ पर आप लोगों को डाटा अपना रिपोर्ट्स अपलोड करनी होती हैं, अनेक्शंस अपलोड करने होते हैं, बैकअप अपलोड करना होता है। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जिसके बारे में अभी बस हम अपनी अगली स्लाइड्स में बात करने वाले कि वो स्टैंडर्डाइज कैसे होगा। स्टैंडर्डाइज तभी होगा जब सबके पास सेम पैटर्न होगा डाटा मैनेज करने के लिए। हर कोई अपने अपने पैटर्न में डाटा को स्टोर एंड मैनेज करेगा तो वो कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो क्या सिस्टम है, क्या फ्लो है, वो अभी हम आगे बात कर लेंगे। ऑब्वियसली कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जिसके लिए हम लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया है कि आप लोगों को हम लोग टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहेंगे। कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, किसी का कोई उसमें इनपुट आता है कि और किसी अच्छे तरीके से डाटा मैनेज करने की टेक्निक है किसी के पास। जैसे अभी वी केम टू द डेट क्लाउड वर्जन ऑफ योर ऑडिट ट्रैकर एंड ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पर आपका वो आपने अपना जीमेल ड्राइव पे सब गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, रियल टाइम में आप अपडेट करते हैं, रिव्यूअर देख लेता है। सो दीज आर द इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती रहेगी देन ऑब्वियसली वी विल ट्रेन यू अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद रिटेंशन पॉलिसीज क्या होगा कि जो जो डाटा आपका आपने स्टोर करके रखा है वो उसको रिटेन करना बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। जैसे मैंने अभी बोला कि हार्ड फाइल में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप मान लीजिए किसी दूसरी साइड आप काम करके आए, हार्ड फाइल ऑफिस में दी, अब दूसरी साइड पे आप काम करने चले गए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो रिपोर्ट का क्लोजर होते होते टाइम लग जाता है। अभी 15-20 दिन के बाद कोई मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा, देन वो दे विल आस्क फॉर सम एविडेंस और बैकअप, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं कि वो ज़ीरो उस पर लेके आना है हमें टॉलरेंस पे, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो सेम डे सेम मोमेंट जब आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो वहीं क्लोज हो जाने चाहिए विद एवरीथिंग। स्टिल हम 1% चांसेस लेके चल रहे हैं कि जब वो एचओ लेवल पे गई हैं या किसी और हायर अथॉरिटी पे गई हैं तो आपसे हो सकता है डाटा को कोई मांग सकता है, तो वहाँ पर वो डाटा को रिट्रीव करना रिटेन करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कैसे फोल्डर मैनेजमेंट करना है। एंड इसके बाद हम कुछ लोगों के यहाँ पर सिस्टम एक्सेस करवा के देन चेक करेंगे कि हाउ दे आर इन प्रेजेंट मेंटेनिंग देयर डाटा एंड उनका फोल्डर मैनेजमेंट कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले सबके सिस्टम में, और आप सब लोगों को लैपटॉप्स अलॉट किए गए होंगे, किसी के अपने होंगे, किसी के कंपनीज के होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग। वो लैपटॉप आपका डेट डजंट मीन्स कि उसके अंदर जो डाटा है वो आप डीम्ड कर लोगे कि जी ये तो हर कोई समझ ही लेगा कि मेरा ही डाटा है। तो यस, वो ऑफकोर्स आपका डाटा, आपकी वर्किंग हो गई, बट आपके उस सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, अपार्ट फ्रॉम सी ड्राइव सब लोगों को पता है वर्नेबल ड्राइव होती है। सिस्टम में कभी भी क्रैश आएगा तो सी ड्राइव का डाटा सारा क्रैश हो जाता है, सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। तो सी ड्राइव के अलावा जो भी आपकी DEF ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स हैं, आप किसी भी एक ड्राइव में अपने नाम का सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट ऑप्शनल एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग विच यू हैव टू फॉलो। ठीक है, सो योर नेम फोल्डर विद योर नेम। आफ्टर डैट उसमें आपके 2 फोल्डर्स बनेंगे, इसी पैटर्न में फॉलो करना है। एक फोल्डर क्लाइंट ही लिखा रहेगा उस पर, क्लाइंट का नेम नहीं बोल रहा मैं, वो फोल्डर में लिखा होगा क्लाइंट्स, और दूसरा होगा आपके अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आएंगी। क्लाइंट के अंदर अब आपका क्लाइंट 1, तो क्लाइंट 1 इज द नेम ऑफ योर क्लाइंट। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम आ गया, XYZ आ गया, फिर आपने एक फोल्डर बनाया क्लाइंट्स का और एक आपने फोल्डर बनाया अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का। अब क्लाइंट के अंदर इफ़ यू आर वर्किंग इन सम प्रोजेक्ट लाइक
आप एक अदानी के लिए काम कर रहे हैं, या आप रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, या आप टाटा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपने क्लाइंट का नाम लिखा। तो क्लाइंट 1 का फोल्डर, क्लाइंट 2 का फोल्डर, एंड आपके अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपके जैसे जो रिम्बर्समेंट्स हो गई, या आपका अदर कुछ लर्निंग मटेरियल हो गया, आपकी जो कुछ परमानेंट चेकलिस्ट हो गई, आपकी एस हो गई, जो हमारी ऑडिट एस हैं, या आपका वो रिकॉर्ड। So there is no scope of maintaining your any personal data in the official system. First of all, you have to be very clear with that. तो यहाँ पर other official records means your reimbursements or your others your office communications और all those things, ठीक है। क्लाइंट वाले में जब हमने क्लाइंट अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं आपने अकॉर्डिंगली उनके नाम के साथ फोल्डर बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन एक क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इफ यू आर हैंडलिंग, देन नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नेम मीन्स इफ there are different packages, then package. If there are different projects itself, then project. For example, you are doing for example let's शाहपुर जी का हम कर रहे हैं, तो शाहपुर जी if you are doing SAU project, then SAU project is 1. शाहपुर जी you are doing ITPO project, ITPO project is 2. If you are doing काशीपुर project, काशीपुर मेडिकल कॉलेज या IIM whatever it is, then that is project 3. तो वो उस प्रोजेक्ट के नाम के साथ, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम शुड बी जो कि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। उस प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप लोग प्रोनाउंस कर रहे हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का नाम, वो प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पर आएगा। देन उसके बाद अगर वो आपका कंकरेंट ऑडिट है या रिपीटेबल इन नेचर ऑडिट है, तो फर्स्ट मंथ का ऑडिट डाटा, सेकेंड मंथ का ऑडिट डाटा, एंड इसके अलावा ये फर्स्ट मंथ ऑडिट डाटा एंड सेकेंड मंथ ऑडिट डाटा में क्या आएगा, आपकी करंट फाइल्स विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। परमानेंट फाइल के लिए देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट फोल्डर। प्रोजेक्ट 1 में भी अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज जम्मू कटरा प्रोजेक्ट पे अगर जो टीम है, तो क्लाइंट का लिख दिया आपने नाम जम्मू कटरा, जो जिस क्लाइंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं, देन जम्मू कटरा प्रोजेक्ट आपने लिख दिया। अगर पैकेज है तो विद पैकेज लिख दिया। उसके अंदर अगर हम वहाँ रेगुलर हैं तो एक हमने परमानेंट फाइल बनाई। परमानेंट फाइल में हम जो भी क्लाइंट रिगार्डिंग मतलब जो हमारे क्लाइंट के उसके क्लाइंट के साथ रेवेन्यू रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, या सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर्स हैं जो वन टाइम वाले हैं, जो MEP वाले हैं, या उस टाइप का जो भी डाटा है वो आपने रखा परमानेंट फाइल्स में। देन उसके बाद आप आओगे फर्स्ट मंथ ऑडिट, सेकेंड मंथ ऑडिट में, यानी एंड फर्स्ट मंथ ऑडिट, सेकेंड मंथ ऑडिट मीन्स मंथ एंड द ऑडिट ईयर, है ना। अगर मेरा फर्स्ट मंथ सेप्टेम्बर में मैंने किया तो सेप्टेम्बर 2025, उसके बाद अक्टूबर कर रहा हूँ तो अक्टूबर 25, या दिसंबर कर रहा हूँ तो दिसंबर 2025। इसी हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट में हमें मेंटेन करना है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मंथ ऑडिट अब हमने लिखा, यहाँ तक देखो क्लियर हो गया सबको। हमने नाम लिखा अपना, नाम के अंदर क्लाइंट लिखा, ठीक है, क्लाइंट लिखा, फिर अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखा। क्लाइंट के अंदर हमने क्लाइंट का नाम लिखा, फिर फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड क्लाइंट एंड अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपने 2 फोल्डर बना दिए, एक रिम्बर्समेंट का फोल्डर बना लिया, एक एप्लीकेबल, और अदर्स फोल्डर आपने बना लिए। देन उसके बाद अब जो आपके अदर ऑफिशियल्स रिकॉर्ड एंड डेट मतलब वो हमारे लिए किसी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इन फर्दर 2 कैटेगरीज के बाद आप उसको और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बट ये जो क्लाइंट वाला फोल्डर बनाया है दैट रिमेन्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एनी ऑफ द पर्सन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज किस मूवमेंट पे, किस पॉइंट पे किसको उस डाटा को रिट्रीव करने की जरूरत पड़ जाए, वी नेवर नो, है ना। हमें नहीं पता होता कि अगला कौन सा टीम वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। तो जब हम इस हिसाब से डाटा मैनेज करेंगे तो डेट विल बी वेरी इजी कि आप उस डाटा को, आप स्पेशली अगर आपको किसी को उस डाटा का बैकअप देना है, आप क्या करेंगे, सीधा वो क्लाइंट 1 का फोल्डर उठाएंगे दे देंगे, क्लाइंट 2 का फोल्डर उठाएंगे दे देंगे। आपको ऑफिस में बैकअप देना है, सीधा क्लाइंट का फोल्डर उठाएंगे दे देंगे। एंड जो डाटा एक्सेस करने वाला पर्सन होगा, जो दूसरी टीम होगी, उसको भी पता होगा कि अगर मुझे इस क्लाइंट का दिसंबर मंथ का या सितंबर मंथ की रिपोर्ट देखनी है तो उसको पता होगा कि मुझे कहाँ मिलेगी वो, क्योंकि वो भी उसी हिसाब से डाटा मैनेज कर रहा होगा। तो ये पैटर्न सब लोगों को, ठीक है, फ्रॉम द वेरी न्यू बिगिनर एंड टू द GTL, सबका सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ लो कि दिस इज़ अ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर विच वी नीड टू फॉलो फॉर आवर डाटा मैनेजमेंट। अब ये जो फर्स्ट मंथ ऑडिट की बात करी हमने, अब इसमें कैसे फर्दर डाटा आएगा, तो आपने लेट सपोज दिसंबर का ऑडिट आप कर रहे हो तो दिसंबर का आपने एक फोल्डर बना दिया। अब उसके अंदर ये 3 चीज़ें हमारी होनी चाहिए। एक तो रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप, तो जो हमारी फाइनल रिपोर्ट एंड उससे रिलेटेड अनेक्स्चर्स होते हैं एंड उससे रिलेटेड जो वर्किंग्स रहती है ना, वो हमारा एक रिपोर्टिंग फोल्डर अलग होना चाहिए। यहाँ पर मैच करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, ऊपर तक का डाटा फिर भी कई लोग का ना थोड़ा थोड़ा ठीक है मेंटेन होता है,
उसके बाद अब जब फर्स्ट मंथ डाटा में हम लोग घुसते हैं, यहाँ पर क्या सारी चीज़ें जस्ट एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, दुनिया भर की फाइल्स ही फाइल्स होती हैं। अब उसी में कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी पड़ी होगी, आपकी रिपोर्ट भी 4 बार पड़ी होगी, कॉपी कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, जितनी बार रिपोर्ट बनाते रहोगे, शेयर करोगे, वहाँ से रिवर्ट होके आएगी रिव्यूअर से, फिर वो कॉपी पे कॉपी जनरेट होती रहती है। सेम फॉर द डाटा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप का अलग फोल्डर होना चाहिए, कि जहाँ पर आपका क्रिस्पी क्लियर होना चाहिए कि वर्क स्कोप आपका क्या था उस मंथ का, उस वर्क स्कोप के आगे जितने भी जो अभी हम ट्रैकर मेंटेन करते हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। मतलब दिस फोल्डर इज समथिंग लाइक कि जो रिव्यूअर को जिससे काम हो। एंड जब आप क्लाइंट के पास बैठो तो आपका मोस्टली काम इस रिपोर्टिंग फोल्डर से ही हो जाना चाहिए सारा, आपको दूसरे फोल्डर्स देखने ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि किसी को ये चेक करना है कि जो एरियाज आपकी रिपोर्ट में नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं, उसकी वर्किंग दिखाओ, तो वो आपका अदर फोल्डर में होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप आपका जो फाइनल रिपोर्ट या रिपोर्ट के जितने भी वर्जन्स हैं वो आपके उस फोल्डर में होने चाहिए, और अनेक्शर्स उस फोल्डर में आपके होने चाहिए। डाटा फ्रॉम क्लाइंट में जो भी डाटा हम क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं, अभी वो किस किस हिसाब से मेंटेन करना है वो भी हम बात करेंगे। एंड वर्किंग्स में तो जो भी आपकी जितनी भी वर्किंग फाइल्स अदर फाइल्स होती हैं वो हो गई। अब डाटा फ्रॉम क्लाइंट में देखिए यही हमारा मेजर डाटा होता है। क्लाइंट बिलिंग रिलेटेड रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग रिलेटेड रहेगा, एसएपी के रिकॉर्ड्स रहेंगे, और अदर्स यानी आपने स्टोर से कोई डाटा लिया है, या पीएनएम से कोई डाटा लिया है, या क्वालिटी से कोई डाटा लिया है, यानी उस डिपार्टमेंट वाइज आप नाम, जैसे क्लाइंट बिलिंग एक डिपार्टमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग एक डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो, पीएनएम डिपार्टमेंट लिख सकते हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट लिख सकते हो। जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट वाइज जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो डाटा आप उस हिसाब से मेंटेन रख सकते हो। एंड उसके अलावा जो भी सैप से जो भी रिपोर्ट्स आप जनरेट करके रख रहे हो वो ओरिजिनल रिपोर्ट, उसको कोई भी उसमें बिना चेंज किए वो ओरिजिनल रिपोर्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। कभी भी उसके ऊपर कोई काम करना है तो उसका पर्टिकुलर फिर वो अनेक्शर बना के उसका रेफरेंसिंग करके उसको काम करो, लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट को कभी टेम्पर मत करना, वो रिपोर्ट हमारे पास रहनी चाहिए। नहीं तो कई बार उस ओरिजिनल रिपोर्ट का हम ऑथेंटिकेशन ही ख़त्म कर देते हैं, ऑथेंटिसिटी ही ख़त्म कर देते हैं उसकी, हम उसको इतना अमेंड और मोल्ड कर चुके होते हैं, तो बाद में समझ आता है कि ये तो रिपोर्ट ऐसी थी ही नहीं, या रिपोर्ट में कोई एरर था तो हम कैच ही नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल रिपोर्ट्स को कभी भी नहीं चेंज करना है, उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट्स में काम करना है। तो जैसे आप क्लाइंट बिलिंग के अंदर सर्टिफाइड बिल्स का अलग फोल्डर होना चाहिए, सबमिटेड बिल्स का अलग फोल्डर होना चाहिए, उसके अलावा कोई क्लाइंट रिलेटेड आपका डाटा है, कोई कम्युनिकेशंस हैं, या कुछ भी जो उनकी आपको रिलेटेड डाटा मिलता है वो आप अदर्स में डाल सकते हो। सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में कैटेगरी वाइज हमारा होना चाहिए। कैटेगरी मीन्स अगर हाईवे कॉन्ट्रैक्ट जैसे अर्थवर्क का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उस कैटेगरी वाइज सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में हमें मेंटेन रखना है, ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि आप किस नेचर के कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने चेक किया, उसमें कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं ना, तो ये ना आपको वैसे भी हेल्प करेगा। जब हम क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर मैपिंग करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की क्यूमुलेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, एंड क्लाइंट की क्यूमुलेटिव क्वांटिटी तो हमें क्लाइंट बिलिंग से मिल जाती है। तो जब उस सेम कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स को आप एक फोल्डर में डालते रहोगे ना, तो उससे क्या होगा ना, आपको ईजिली उनको रिलेट करने में, उनको स्टडी करने में हेल्प मिलती है। जो ओवरलैप होता है वो सब चीज़ें चेक करने में आपको हेल्प मिलती है। अगर आप खाली एक सब कॉन्ट्रैक्टर का डाटा बना के उसमें सारे टाइप के सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल डाल दोगे तो वो वहाँ पर बहुत पजल हो जाता है फिर आपके लिए, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स को मेंटेन रखना है। उसके बाद अगेन सर्टिफाइड आरएबीएल्स में आपके जैसे एक्सेल और पीडीएफ हो गए वो आपके मेंटेन हो जाएंगे। देन उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आपने सब कॉन्ट्रैक्टर लिखे तो उसमें फिर अब सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज आपके अलग अलग होंगे। मान लो मैंने अर्थवर्क के कॉन्ट्रैक्टर चूज़ किए, तो अर्थवर्क के कॉन्ट्रैक्टर में 10 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होंगे, तो वो हर कॉन्ट्रैक्टर वाइज अलग अलग फोल्डर मेरा होना चाहिए, क्योंकि एक एक कॉन्ट्रैक्टर के 10-10 20-20 बिल होंगे, एक एक कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड 10 डाटा होगा, उसके रिकन्सिलेशन होंगे, उसकी वर्किंग्स होंगी, तो वो हर सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज डिफरेंट फोल्डर मेरे पास होना चाहिए। तो कैटेगरी डिफ्रेंसिएशन हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर डिफ्रेंसिएशन हो गया। अगेन उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि वर्क ऑर्डर अगर सब कॉन्ट्रैक्टर के हैं तो वर्क ऑर्डर हो गया, आर ए बिल्स हैं तो आर ए बिल्स हो गया, और उससे रिकन्सिलेशन से और कोई डाटा है तो अकॉर्डिंगली आपका हो गया। आर ए बिल में अगेन एक्सेल्स अलग आपको मेंटेन रखने हैं, पीडीएफ आपको अलग मेंटेन रखने हैं। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ हाउ टू मेंटेन, हाउ टू रिटेन योर डाटा इन योर सिस्टम। अब अगर ये अब सोचो अगर ये सेम पैटर्न में हम सब लोग फॉलो करें तो कितना ईजी होगा किसी से भी डाटा रिट्रीव करना, किसी का भी बैकअप लेना, किसी का भी डाटा हैंड ओवर लेना, किसी को भी डाटा हैंड ओवर देना। अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है। तो इस सब चीज़ के ऊपर पहले भी ट्रेनिंग्स होती रही हैं, आप लोगों को बताया भी जाता होगा। लेट्स सी कि
अभी हम उसको कितना मेंटेन कर रहे हैं, किसके सिस्टम में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो अभी हम चेक करेंगे। तो ये कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, हाईवे स्ट्रक्चर या अदर जो हो गए आपके वो हो गए, फिर MEP पाइलिंग अथवा कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। तो यानी हर कैटेगरी वाइज हमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो डाटा है वो मेंटेन रखना है। ये शीट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसको भी रेफ़र करना है इसी फ्लो चार्ट में रेफ़र करना है एंड इसी फ्लो चार्ट में अपना डाटा मेंटेन करना है। तो अगर हमें देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर मास्टरी करनी है तो हमें ये सब चीज़ों का मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड इससे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, एक तो जो क्रेडिबिलिटी है वो हमारी स्ट्रांग होगी। तो कुछ क्या होता है ना कि जब आप एक रिपोर्ट लेके जाते हो और उसके पीछे जब स्ट्रॉन्ग वर्किंग पेपर्स एंड स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो आपकी रिपोर्ट पे कोई भी जो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर क्या होता है कि जब आप रिकन्सिलेशन लेकर जाते हो या कोई भी एक्सेस बिलिंग लेकर जाते हो और जब आपसे बैकअप मांगा जाता है, आप 4 घंटे बैकअप ढूंढने में लगा देते हो, तो हर कोई समझ जाता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी मतलब कितनी ही होगी। जिसके पास रेडिली बैकअप अवेलेबल नहीं है उसका, तो वो उस रिपोर्ट के ऊपर क्या मतलब अपना जजमेंट लेगा। तो एक वो बहुत आपको ध्यान देना उस चीज़ के ऊपर। जब हमारे पास पूरा बैकअप, पूरा डाटा, सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं तो उससे ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। जब सिस्टमेटिकली डाटा जब तक हमारे पास ऑर्गेनाइज रहेगा, हमारी जो वर्क करने का कल्चर, वर्किंग कल्चर, रिपोर्टिंग कल्चर, एवरीथिंग उसमें क्या होगा, इन्हेंसमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। नई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे धीरे धीरे डाटा को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अभी हमने क्लाउड पे सिस्टम शुरू किया, सब लोगों को पता होगा। हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम अपने डाटा का बैकअप रखते हैं। तो उस हिसाब से जो भी गोइंग फॉरवर्ड होगा उन सब चीज़ों में हम लोग और एडवांसमेंट लेके आएंगे, जिससे कि सिस्टम में डाटा स्टोरेज मिनिमम हो जाए एंड सारा का सारा डाटा सबके लिए ऑनलाइन हो जाए। तो बस आपको अब यही ध्यान रखना, देखो अल्टीमेटली क्या है कि योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज योर प्रोफेशनल सिग्नेचर, ठीक है। फाइनली रिपोर्ट पर नाम किसका जा रहा है, रिव्यूड बाय क्या जा रहा है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपके लिए आपकी जो रिपोर्ट है उसके पीछे जितना आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगा, यकीन मानो उतना ज़्यादा एफर्टलेसली आपका ऑडिट कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा एफर्टलेसली आपका रिव्यू होगा एंड ऑटोमेटिकली आपका जो ऑडिट का टाइमलाइन है वो आपका जो प्लानिंग टाइम्स रहेंगे एंड आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा उसमें आपको फेवरेबल वेरिएंसेस देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिकली। एंड आप अपनी टीम का रिव्यू करने में आपको हेल्प मिलेगी, टीम को अपना रिव्यू करवाने में हेल्प मिलेगी एंड अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें अपनी टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए ऑडिट क्लोज करना है, वो हम मीट कर पाएंगे। सो इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। सबको इसी मैनर में डाटा मैनेज करना है, इसी तरीके से डाटा मैनेज करना है। सो नाउ वील कम टू द एस्पेक्ट के